Hello students, today we are covering our next topic, that is hepatitis. So let's start. Now as the word is itself indicating what hepatitis is. Hepa means which is related to a liver and itis means the inflammation. So what hepatitis is? Hepatitis is the inflammation of the liver tissues. It is basically a kind of two types, that is viral hepatitis and autoimmune hepatitis. So viral hepatitis में it is being related to human leukocyte antigen, that is HLA, that is present on the surface of our liver cells and which is being involved in the pathophysiology of the hepatitis, in which our immune system starts attacking our liver tissues. So it is being considered in the autoimmune hepatitis. In normal cases, HLA-DR3 and HLA-DR4 are the two main antigens that are being present on the surface molecules and which is being removed by the thymus. But in case of hepatitis, it is being deteriorated and the immune cells starts destructing our own liver tissues. Now talking about the viral hepatitis, in which CD8 T cells start migrating or killing our liver tissues. In this, the virus enters in our body and attacks the liver tissues and starts infecting in it and produces an infected protein that is called as MHC1, which is being detected by CD8 T cell. ये डिटेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे शुरू हो जाती है हमारी साइटोटॉक्सिक किलिंग और फाइनली जो रिजल्ट होती है सेलुलर एपोप्टोसिस में. एक्यूट केसेस में ये खुद से रिजॉल्व हो जाता है हेपेटाइटिस हमारे खुद के इम्यून सेल्स के थ्रू, बट इन सम केसेस इट लीड्स टू क्रोनिक कंडीशंस दैट वी विल डिस्कस फर्दर. एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो ये 5 कुछ मेन इन्फेक्शंस के थ्रू होता है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन और द काइंड ऑफ इन्फेक्शन लाइक साल्मोनेला, स्टेफिलीज, पैरासिटिक और हेलमिंथीज. एल्कोहलिक हेपेटाइटिस ड्यू टू अल्कोहल इनटेक. नॉन अल्कोहल में ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया. टॉक्सिक हेपेटाइटिस में ड्यू टू सम ड्रग अब्यूज और सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल्स, हर्बल्स. इस्केमिक ड्यू टू लेस ब्लड फ्लो. acute liver vascular diseases, autoimmune hepatitis as I told you in the starting, and metabolic liver disease and other kinds of hereditary disorders. तो ये सब हमारे etiological factors रहते हैं हेपेटाइटिस होने के. नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस. सबसे पहले हमारा आता है हेपेटाइटिस ए, जिसे हम बोलते हैं HAV-A, which is being transmitted through infected fecal or oral material. Basically serology में it is being detected by HAV IgM antibody that is being actively found during the infection of HAV, and when the HAV IgG antibody is being detected in the body, it indicates the recovery from the virus, and it can be easily be recovered through the vaccination also. Now talking about the HEV, that is viral hepatitis E, that is almost similar to HAV. Transmission is almost same. They both leads to acute cases. No chronic phase is being seen. कोई भी chronic phase दिखता नहीं इन दोनों में. डिटेक्शन इनका वही IgM एंटीबॉडी के थ्रू हो जाता है. रिकवरी में IgG एंटीबॉडी देखी जाती है ब्लड में. बस सिंपल से डिफरेंस ये है कि HAV में हम क्या है वैक्सीनेशन के थ्रू रिकवर कर सकते हैं, लेकिन HEV की कोई वैक्सीनेशन अब तक नहीं है. नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस सी की. इसका एजेंट होता है हमारा हेपेटाइटिस सी वायरस SSRNA एनवलप. ये क्या है, ये ट्रांसमिट होता है हमारे थ्रू चाइल्ड बर्थ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स और सर्टेन काइंड ऑफ अदर ड्रग अब्यूज़. इसके दोनों फेजेस रहते हैं हमारे एक्यूट और क्रोनिक. इसमें हम इजीली थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा एंजाइम इम्यूनो एसे, रिकॉम्बिनेट इम्यूनो ब्लॉटिंग, जिसमें हम
HCV IgG एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, फिर PCR के थ्रू, वायरल DNA इन द ब्लड, इन सारे टेक्निक्स के थ्रू हम इसे डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। ये भी इसका क्रोनिक और एक्यूट दोनों फेजेस रहते हैं और इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन अब तक डेवलप नहीं हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस बी की, जो कि मोस्ट सीरियस होता है हमारी बॉडी और पेशेंट के लिए। इसमें हमारा प्रेजेंट होता है सरफेस एंटीजन HBsAg, जिसे हम बोलते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इसमें एक और एंटीजन होता है जो प्रेजेंट होता है कोर एंटीजन HBcAg। ये दोनों हमारे वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों एंटीजन्स मिलके हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसकी भी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन के थ्रू हम इससे बचा जा सकता है। इसके भी क्रोनिक फेजेस होते हैं। इसमें भी क्या है, हमारी खुद की एंटीबॉडीज यानी IgG एंटीबॉडीज सरफेस एंटीजन से जाके बाइंड अप होकर उसे किल करना शुरू कर देती हैं। लेकिन हर बार 80% श्योरिटी नहीं होती है कि हमारी IgG एंटीबॉडीज़ ही विन करें बैटल को। कभी कभी ये वायरस भी मोर हार्मफुल हो जाता है, तो ये ज़्यादा अटैक करने लगता है हमारी सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। लास्ट हमारा आता है हेपेटाइटिस वायरस वायरल हेपेटाइटिस डी, जो कि कॉम्बिनेशन में होता है हमारे वायरल हेपेटाइटिस बी के साथ। ये अलोन इन्फेक्ट नहीं होता है, दोनों फेजेज में ये रहता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं को इन्फेक्शन, यानी कि दोनों के प्रेजेंस में जब इन्फेक्ट होगी बॉडी तब होने को इन्फेक्शन। और जब क्रोनिक फेज में ये डेवलप हो जाती है टाइम के साथ साथ, तो इसे हम बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन, दैट इज़ बी मोर सीवियर। इसको भी हम प्रोफाइलेक्टिक यानी कि ट्रीटमेंट के थ्रू में हम इसे वैक्सीन के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। कौन कौन से पेशेंट्स हाईली रिस्क पे रहते हैं, जैसे वर्कर्स इन द हेल्थ केयर प्रोफेशंस, पीपल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज, हीमोफिलिक्स जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स एब्सेंस होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, और पियर्सिंग इन द बॉडी लाइक टैटूइंग और ऑल दैट। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं अब यहाँ पे। तो पैथोफिजियोलॉजी सिंपल से हमारी वही होती है कि हमारा वायरस एंटर करा बॉडी में, उसने जाके हमारे लिवर सेल्स पर अटैक किया। लिवर सेल्स पे अटैक करने के बाद वो डिफरेंट टाइप की एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को फॉर्म करना शुरू कर देता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था MHC1 प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रोटीन रिलीज होते हैं ब्लड में, जो डिटेक्ट कर लेता है हमारा CD8 T सेल्स। CD8 लेंस के साथ डिटेक्ट होने के बाद इसमें हमारी शुरू होती है साइटोटॉक्सिक किलिंग, विच अल्टीमेटली लीड्स टू सेल अपोप्टोसिस and which in severe condition leads to liver damage। ये हमारी ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी होती है नॉर्मल एक फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ हेपेटाइटिस, जिसे आप इजीली बीइंग मोस्ट ऑफ द टाइम हम देख सकते हैं हमारी वायरल हेपेटाइटिस के केस में। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमारे होते हैं फैटिग, नोजिया, माइल्ड फीवर, येलो स्किन और आईज, जॉन्डिस, स्टमक पेन, डार्क यूरिन, ये सारे हमारे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस के। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कोहलिक लिवर डैमेज की। तो अल्कोहलिक लिवर डैमेज क्या है, एक नॉर्मल से लिवर में जब हम एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल इंड्यूस करना शुरू हो जाते हैं, तो या तो वो हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो उसमें क्या होता है, लिवर सेल्स का नेक्रोसिस होने लगता है, लिवर सेल्स हमारी डेस्ट्रक्ट होकर डेथ होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी, वहाँ पे फैटी लिवर हो जाएगा। स्टीरोसिस में हमारे फैटी लिवर हो जाता है, एक्सेसिव फैट्स बिल्डअप होने लगता है हमारे लिवर के अंदर। फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, फाइबर्स का ब्रेकडाउन, कंटिन्यूड एक्सपोजर के थ्रू अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस हो जाता है, जिसमें हमारा हाइपोप्लास्टिक नोड्यूल्स भी फॉर्म हो जाते हैं हमारे लिवर के अंदर, विच अल्टीमेटली लीड्स टू लिवर डैमेज।
हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी की हमारी कौन कौन सी कंडीशंस रहती थी और कौन कौन से उसके थ्रू हम रिकवर कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए में जैसे हमने बात की थी, वो वैक्सीनेशन के थ्रू हम रिकवर कर सकते हैं। HIV की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। HCV की हम वैक्सीनेशन के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। HBV में भी हम रिकवर कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। तो HDV में भी हम तो वैक्सीनेशन के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। ड्रग्स की बात करें तो कुछ टाइप के इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं हम इम्यूनो रिलेटेड हेपेटाइटिस में, जो हमारे इम्यून सेल्स को सप्रेस करती हैं। वो हम ट्रीटमेंट में रेजिमेंट्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, एजाथ्रियोप्रीन हो गए, ये सारी हमारी ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। थैंक यू।